Assalamu alaikum sir and dear class fellows. My name is Isha Wahid and I am leading the group presentation today. Our group consists of 5 members: Hadika Batul, roll number 50, Fizza Munawwar, roll number 76, Aisha Iman, roll number 48, Maryam Riaz, roll number 29, and myself Isha Wahid, roll number 23. Our group topic is how to optimize the reaction condition and how to calculate yield by using derivation and integration. All of us will briefly explain the topic. Thank you for your attention and let's get started. Okay, so topic assigned to me is to explain what basically optimization of reaction means. इसका मतलब ये है कि किसी भी रिएक्शन की कंडीशन को इस तरीके से मेंटेन करना कि हमें रिएक्शन की यील्ड ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके, जबकि हमारे जो एनर्जी के रिसोर्सेज हैं वो कम से कम इस्तेमाल हो। जैसा कि यहाँ डेफिनेशन है, ऑप्टिमाइजेशन ऑफ रिएक्शन कंडीशन इज अ क्यूरिकल एक्सेप्ट ऑफ केमिकल प्रोसेस एमिंग टू मैक्सिमाइज द यील्ड ऑफ डिसाइड प्रोडक्ट्स while minimizing resources and energy consumption. Then the question arise, what is yield? यील्ड रिएक्शन की वो डिसाइड प्रोडक्ट है जो हमें परसेंटेज में कैलकुलेट करना होती है कि रिएक्शन के कितने परसेंट रिएक्टेंट्स कम से कम रिसोर्सेज और एनर्जी को यूज़ करते हुए प्रोडक्ट्स में चेंज हो रहे हैं। यील्ड the amount of desired product obtained from a chemical reaction often expressed as percentage. Then there is reaction condition. हमने रिएक्शन की कंडीशन को इस तरह से एडजस्ट करना है कि हमारे पास यील्ड की एक्यूरेसी ज़्यादा से ज़्यादा हो। किसी भी रिएक्शन को कैरी आउट करवाने के लिए उसकी कंडीशन जैसा कि टेम्परेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशन और कैटलिस्ट वगैरह को मेंटेन रखना पड़ता है ताकि हमें हाईएस्ट पॉसिबल यील्ड मिल सके। Then there is optimization, which is the adjusting of reaction condition to achieve the highest possible yield. उसके बाद हमारे पास इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है, important information, that is yield optimization is essential for industrial processes. इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस के लिए ये ऑप्टिमाइजेशन की टेक्निक हमारे पास बहुत ज़्यादा एसेंशियल प्रोसेस हो गई है आजकल के दौर में। नेक्स्ट देयर इज़ रिएक्शन कंडीशन मस्ट बी केयरफुली कंट्रोल्ड टू अवॉइड अनवांटेड साइड रिएक्शंस एंड बाय प्रोडक्ट्स। हम ऑप्टिमाइजेशन तो करवा रहे हैं, ऐसा ना हो कि रिएक्शन की कंडीशन इस तरह एडजस्ट हो जाए कि दूसरे साइड रिएक्शंस भी होने लगे, जिसकी वजह से हमारी यील्ड की एक्यूरेसी कम हो जाती है। सो वी हैव टू चेक दैट देयर इज़ नो साइड रिएक्शंस अकर्स। Then there is interesting facts. The concept of optimization reaction condition date back centuries, but मॉडर्न टेक्निक ने इस प्रोसेस को बहुत ज़्यादा इन्हेंस किया है फॉर द कंट्रोल रिएक्शंस। अभी रिसेंटली 2010 में एक केमिस्ट थे, नोबेल लॉरेट रिचर्ड एफ हैक, उन्होंने नोबेल प्राइज़ विन किया है फॉर द पर्पस ऑफ डेवलपिंग पैलेडियम कैटेलाइज्ड क्रॉस कपलिंग रिएक्शन which require careful optimization. My next group members will elaborate the discussion. Thank you so much. Myself Mariam Riaz. I am here to discuss about uses of derivative and integration in optimization of a reaction. What is derivative? Derivative is the rate of change. There are two types of derivative, total derivative and a partial derivative. Total derivative. Suppose we have an equation y is equal to 2x square. Y is only depends upon x. It's represented by dx over dt. Partial derivative, y is equal to 2x plus 3z. Here y is depends upon x as well as z. We can find the derivative of y with respect to x and the z is considered as constant. Integration and derivative are the powerful tool in optimizing chemical reaction. However, they are used in first, rate equation. As we know that rate is equal to k, concentration of a reactant over a concentration of product. Derivative describe the rate of change of reactant concentration over a time. By analyzing these rates, chemists can identify optimal condition for a reaction. In short, derivative tells how the quantity changes with respect to the other variables. Second, optimization. Integration helps find maximum or minimum of a function like reaction yield or a rate. By integrating the rate equation, chemists can identify the optimal condition time or a condition.
Third, concentration profiles. In our previous classes, we learned about average rate or an instantaneous rate. Derivative tells about instantaneous rate and the integration tells about average rate. Here, derivative reveals how reactant concentration changes over a time. Integration gives total amount of reactant consumed and a product formed. Fourth, reaction yield. Derivative help optimize reaction condition for maximum the yield. Integration calculate the total yield over a time. Fifth is parameter estimation. Derivative aid in estimating kinetic parameter like rate constant. Integration helps refine these estimates. Here the question arises how derivative aids in estimating kinetic parameters. The process is molding process. Derivative identify the rate determined step and the integration is the sum up of integrated instantaneous rate. 6 is sensitivity analysis. Derivative assess how changes in condition affect the reaction. Integration helps identify the most critical factor. 7th, optimal control. Derivative and integration are used to determine the optimal control policies. By applying the integration and derivative, chemist can optimize the rate equation, maximize the yield or a productivity and a selectivity, minimize byproduct and waste, improve reaction efficiency and sustainability. These mathematical tools are essential for understanding and optimizing complex chemical reaction, leading to the better quality product, reduce cost and more efficient processes. Thank you. We will now take a numerical type question और उसको solve करेंगे. Let's consider a simple example of optimizing a chemical reaction using integration and derivatives. हमने suppose किया है chemical reaction है, हमारे पास reactant है A और product है B. तो reactant A जो है वो convert हो रहा है product B में. तो rate of reaction is given by dA/dt is equal to minus KA. अब इस equation में A है हमारे पास concentration of reactant A, K है हमारे पास rate constant और T is the time. We want to find maximum yield of product B जो कि equivalent है minimum concentration of reactant A के. हम इसको solve करेंगे पहले differential equation using integration. तो हम differentiate करेंगे equation को. dA is equal to minus KA into dt. अब इसको solve करने के लिए हम या तो use करेंगे substitution method या फिर हम separation of variable वाला method use करेंगे. अब हमने क्या किया कि वेरिएबल्स को एक साइड पे कर लिया और बाकी टर्म्स को एक साइड पे कर लिया. तो हमारे पास आ जाएगी इक्वेशन dA/A इज़ इक्वल टू माइनस के dt. अब हम दोनों साइड्स को इंटीग्रेट करेंगे. इंटीग्रेट करने के लिए हमने इंटीग्रेशन का साइन लगाया बोथ साइड्स पर. इंटीग्रेशन की हमने वो तो हमारे पास इक्वेशन बन गई 1/A इंटू dA इज़ इक्वल टू माइनस के dt. इससे हमारे पास जो आंसर आएगा वो हमारे पास इक्वेशन आएगी. अब जो हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड पे है उसमें जो जिस वैल्यू की हमने इंटीग्रेशन की है नीचे उसकी वैल्यू ऊपर पड़ी हुई है. तो ये हमारे पास होता है नेचुरल लॉग की पावर, नेचुरल लॉग वाली टर्म. इसलिए हमारे पास आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ मॉडुलस A इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड पे सिंपल इंटीग्रेशन है माइनस के इंटू टी प्लस सी है हमारे पास कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. अब हमारे पास इंटीग्रेशन की इक्वेशन आ गई. अब हम दोनों साइड्स को एक्सपोनेंशिएट करेंगे जब हम इस इक्वेशन को, तो हमारे पास इक्वेशन आएगी e⁻⁴ नेचुरल लॉग मॉडुलस A इज़ इक्वल टू e⁻⁻ माइनस के टी प्लस सी. लेफ़्ट हैंड साइड पे जो हमारे पास e⁻⁻ नेचुरल लॉग ऑफ मॉडुलस A है वो सिंप्लीफाई हो जाएगा मॉडुलस A में. सिर्फ A में नहीं, मॉडुलस A आंसर आएगा क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथम फंक्शन जो है वो एक दूसरे के इन्वर्स हैं, तो वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे और हमारे पास आखिर में वैल्यू आएगी सिर्फ मॉडुलस ऑफ A. जैसे कि हमारे पास दिया हुआ है नीचे e⁻⁻ नेचुरल लॉग ऑफ x इज़ इक्वल टू x. इसी तरह हमारे पास e⁻⁻ नेचुरल लॉग ऑफ मॉडुलस A, तो आंसर आएगा मॉडुलस A. अस्सलामुअलैकुम, माय नेम इज़ फिज़ा मुनव्वर एंड माय रोल नंबर इज़ 76. हमारा टॉपिक है ऑप्टिमाइजेशन ऑफ रिएक्शन कंडीशंस और हम डिस्कस करेंगे द एब्सोल्यूट वैल्यू सिंबल जो कि मॉड्यूलस होता है. हमने इसको यूज़ किया है क्योंकि ये हमेशा नॉन नेगेटिव वैल्यू को शो करता है. लेकिन यहाँ पे हम ए जो है वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंस ले रहे हैं और कंसंट्रेशन जो है कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, हमेशा नॉन नेगेटिव होती है, पॉजिटिव वैल्यू होती है. तो हम यहाँ पे एब्सोल्यूट सिंबल को ड्रॉप कर सकते हैं और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं. मतलब जो ई है वो एक्सपोनेंशियल बेस है, ई की पावर नेचुरल लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ए लेंगे हम इज इक्वल टू ए.
देयरफॉर द करेक्ट स्टेप्स। अब हम आगे इसके स्टेप्स की तरफ प्रोसीड करेंगे। तो ई की पावर नेचुरल लॉग ऑफ ए, कंसंट्रेशन ऑफ ए इज इक्वल टू ई की पावर माइनस के टी प्लस सी। यहाँ पे सी कांस्टेंट है। नेक्स्ट हम मॉड्यूलस ऑफ ए इज इक्वल टू ई की पावर माइनस के टी प्लस सी। और नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पे मॉड्यूलस को हम रिमूव कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा ए इज इक्वल टू ई की पावर माइनस के टी प्लस सी। टू फाइंड द कांस्टेंट वी यूज़ द इनिशियल कंडीशन। अब हमने कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है, तो हम यहाँ पे सबसे पहले इनिशियल कंडीशंस लेंगे। इनिशियल कंडीशंस में टाइम हमेशा ज़ीरो होता है, ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे और ए की कंसंट्रेशन ए नॉट होगी। तो ए इज इक्वल टू ए नॉट एट टाइम इज इक्वल टू टी ज़ीरो। ए नॉट इज इक्वल टू ई की पावर माइनस के, और यहाँ पे टी हमने ज़ीरो लिया है तो हम यहाँ पे ज़ीरो पुट करेंगे, तो ये मल्टीप्लाई होकर ज़ीरो हो जाएगा प्लस सी। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास ज़ीरो की वजह से वो वैल्यू ख़त्म हो जाएगी और सिर्फ सी रह जाएगा, तो ए नॉट इज़ इक्वल टू ई की पावर सी। अब हम दोनों साइड पे नेचुरल लॉग लेंगे। नेचुरल लॉग ऑफ ए की पावर ए नॉट इज़ इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ ई की पावर सी। ई यहाँ पे हमारे पास एक्सपोनेंशियल बेस है। एक्सपोनेंशियल बेस लॉगरिथम, नेचुरल लॉगरिथम ऑफ एक्सपोनेंशियल बेस जो है वो कैंसिल आउट हो जाता है। तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास होगा नेचुरल लॉग ऑफ ए की ए नॉट इज इक्वल टू सी, मतलब जो कांस्टेंट है। सो सी इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ ए नॉट। सब्स्टिट्यूटिंग दिस बैक इनटू द इक्वेशन वी गेट ए इज इक्वल टू ई की पावर माइनस के टी प्लस नेचुरल लॉग ऑफ ए नॉट, मतलब जो हमारे पास इक्वेशन थी ए इज इक्वल टू ई की पावर माइनस के टी प्लस सी। यहाँ पे हम सी की वैल्यू पुट करेंगे जो कि है नेचुरल लॉग ऑफ ए नॉट। अब हम डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। हम लेंगे फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी। हम टाइम टी के अकॉर्डिंग डेरिवेटिव लेंगे, तो ये होगा ए इज इक्वल टू ए नॉट ई की पावर माइनस के टी। अब हम टाइम के अकॉर्डिंग डेरिवेटिव लेंगे ए का, तो ए इज इक्वल टू ए नॉट ई की पावर माइनस के टी। नेक्स्ट हम इसमें डेरिवेटिव ले रहे हैं और हम इसके अंदर चेन रूल ऑफ डिफ्रेंसिएशन अप्लाई करेंगे, जिसके मुताबिक हम डेरिवेटिव लेंगे। तो डी इंटू ए नॉट ई की पावर माइनस के टी ओवर डी टी इज इक्वल टू ए नॉट डी ई की पावर माइनस के टी ओवर डी टी। नेक्स्ट स्टेप में हम करेंगे डी ई की पावर यू ओवर डी टी। हम यहाँ पे यू हमने लिया है, माइनस के टी को इक्वल किया है यू के, और इज इक्वल टू ई की पावर यू डी यू ओवर डी टू डी टी है। यहाँ पे हम डी टी को डी यू के नीचे प्लेस करेंगे। इन दिस केस यू इज इक्वल टू माइनस के टी, जैसे कि मैंने पहले बताया कि यू को हमने माइनस के टी के इक्वल लिया है। नेक्स्ट स्टेप में डी इज इक्वल टू हम वापस से यू को हम उसकी वैल्यू में पुट करेंगे, माइनस के टी ही लिखेंगे। डी ई की पावर माइनस के टी ओवर डी टी इज इक्वल टू ई की पावर माइनस के टी इंटू डी इंटू माइनस के टी ओवर डी टी। तो डी इंटू माइनस के टी ओवर डी टी इज इक्वल टू माइनस के। हम यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन हासिल होगी। और नेक्स्ट स्टेप में हम डी इंटू ई की पावर माइनस के टी ओवर डी टी इज इक्वल टू ई की पावर माइनस के टी इंटू माइनस के। अब हम इस एक्सप्रेशन को मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास हासिल होगा डी की पावर डी इंटू ई की पावर माइनस के टी ओवर डी टी इज इक्वल टू माइनस के ई की पावर माइनस के टी। अब हम जो हमारे पास ई की पावर माइनस के टी है, हम इसका टाइम के अकॉर्डिंग हम इसका डेरिवेटिव लेंगे। और दिस मेक्स द सेंस इंटिवली सिंस द एक्सपोनेंशियली फंक्शन ई की पावर माइनस के टी इज डिकेइंग ओवर टाइम एंड इट्स डेरिवेटिव शुड बी नेगेटिव। इसका डेरिवेटिव नेगेटिव होना चाहिए क्योंकि ई की पावर माइनस के टी है और ये डिकेइंग ओवर टाइम है। लेकिन द कांस्टेंट माइनस के डिटरमाइंस द रेट ऑफ डिके। जो हमारे पास माइनस के है ये रेट ऑफ डिके को शो करता है। रेट ऑफ डिके क्या होता है? रेट ऑफ डिके है द रेट ऑफ डिके रेफर्स टू द रेट एट विच अ क्वांटिटी डिक्रीजेज और deteriorates एट ओवर टाइम। इट इज़ often expressed as percentage or a function or a fraction of the original amount that decays per time पर यूनिट ऑफ टाइम। हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में डी ए ओवर डी टी इज इक्वल टू माइनस के ए नॉट ई की पावर माइनस के टी आ जाएगा। अब हमने मैक्सिमम यील्ड ऑफ बी यानी कि मैक्सिमम यील्ड ऑफ प्रोडक्ट फाइंड करना है, जो कि तभी मुमकिन है जब मिनिमम कंसंट्रेशन ऑफ ए होगी, यानी कि ए हमारे पास रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन मिनिमम होगी, लो होगी, तो वही हमारे पास मैक्सिमम यील्ड ऑफ प्रोडक्ट हासिल होगी। तो हम यहाँ पर डेरिवेटिव को इक्वल करेंगे ज़ीरो के, तो हमारे पास माइनस के ए नॉट इज इंटू ई की पावर माइनस के टी इज इक्वल टू ज़ीरो होगा, क्योंकि हमने इसको इक्वल किया है ज़ीरो के, ताकि हमारे पास
मैक्सिमम यील्ड ऑफ बी और मिनिमम कंसंट्रेशन ऑफ ए हासिल हो, तो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास होगा माइनस के ए नॉट ई की पावर माइनस के टी इज इक्वल टू ज़ीरो। सॉल्विंग फॉर द टाइम के लिए जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे टाइम इज इक्वल टू इन्फिनिटी, हम टाइम इन्फिनिट लेंगे। दिस मीन्स दैट द मैक्सिमम यील्ड ऑफ बी और मिनिमम कंसंट्रेशन ऑफ ए इज रीच्ड एट द इन्फिनिट टाइम, यानी कि हमारे इसके मुताबिक ये बात है कि जो मैक्सिमम यील्ड ऑफ बी है या प्रोडक्ट्स है वो इन्फिनिट टाइम पर ही अचीव हो सकता है, यानी कि रिएक्शन गोज़ ऑन रहे और इन्फिनिट टाइम पर ही हमारे पास मैक्सिमम यील्ड ऑफ प्रोडक्ट होगा, मिनिमम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होगा। लेकिन हम प्रैक्टिकली अगर देखते हैं तो मैक्सिमम यील्ड जो है हम किसी भी फाइनाइट टाइम पर फाइंड कर सकते हैं। अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन को ज़ीरो के क्लोजेस्ट लेते हैं तो हम कोई भी टाइम फाइंड करके हम इन्फिनिट टाइम पर मैक्सिमम यील्ड फाइंड कर सकते हैं। और इसके लिए हम यूज़ करेंगे डेरिवेटिव को। बाय यूजिंग डेरिवेटिव वी कैन फाइंड द रेट ऑफ रिएक्शन एट एनी टाइम टी, डी ए ओवर डी टी इज इक्वल टू माइनस के ए नॉट ई की पावर माइनस के टी। और अब हम इस फंक्शन को यूज़ करेंगे तो हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन हम क्लोजेस्ट लेंगे ज़ीरो के और हम टाइम फाइंड आउट करेंगे विच कॉरेस्पॉन्ड्स टू द मैक्सिमम यील्ड ऑफ बी, जो कि हमारे पास रिलेटेड होगा मैक्सिमम यील्ड ऑफ प्रोडक्ट के। इन दिस एग्जांपल we use integration to solve the differential equation and find the concentration of A as a function of time, and then use the derivative to find the maximum yield of B by setting the rate of reaction equal to ज़ीरो। हम रेट ऑफ रिएक्शन को ज़ीरो के इक्वल करके हम मैक्सिमम यील्ड ऑफ बी को फाइंड करने की कोशिश करेंगे। हम टाइम फंक्शन यूज़ करते हुए हम इसकी कंसंट्रेशन को कंसंट्रेशन ऑफ ए जो है वो हमारे पास मिनिमम हमने फाइंड करनी है और मैक्सिमम यील्ड ऑफ बी हमने फाइंड करनी है। तो ये रेट ऑफ रिएक्शन जब हम क्लोजेस्ट टू ज़ीरो लेंगे तो टाइम के फंक्शन से हम इसको फाइनाइट टाइम में भी हम फाइंड कर सकते हैं। Assalamualaikum, my name is Hadika Batul. I will explain how we will use specific values to get a numerical answer by using these equations that we just found. जो इक्वेशंस अभी हमने डिराइव किए हैं उनको यूज़ कैसे करेंगे स्पेसिफिक वैल्यूज़ यूज़ करके, वो मैं एक्सप्लेन करूँगी। ओके, लेट्स सपोज़ कि हम स्पेसिफिक वैल्यूज़ लेंगे ताकि हमारे पास एक स्पेसिफिक न्यूमेरिकल आंसर आए। हमने सपोज़ किया कि इनिशियल कंसंट्रेशन ए नॉट हमने लिया 2 मोल्स पर लीटर, रेट कांस्टेंट के की वैल्यू हमने लिया 0.5 पर आवर, और हमने फाइंड करनी है मैक्सिमम यील्ड ऑफ बी विच इज़ इक्वल टू मिनिमम कंसंट्रेशन ऑफ ए। फर्स्ट हम सॉल्व करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन यूजिंग इंटीग्रेशन। जो हमने इक्वेशन निकाली थी विच वाज ए इज़ इक्वल टू ए नॉट ई रेज़ टू पावर माइनस के टी। उसके अंदर हमने ए नॉट और रेट कांस्टेंट की वैल्यू डाली तो हमारे पास इक्वेशन बन गई ए इज़ इक्वल टू 2 ई रेज़ टू पावर माइनस 0.5 टी। उसके बाद हम इक्वेशन यूज़ करेंगे ताकि हम फाइंड करें डेरिवेटिव ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी। डेरिवेटिव वाली इक्वेशन जो हमने निकाली थी डी ए ओवर डी टी इज़ इक्वल टू माइनस के ए नॉट ई की पावर माइनस के टी। उसमें हमने वैल्यूज़ डालनी है तो हमारे पास इक्वेशन बनेगी डी ए ओवर डी टी इज़ इक्वल टू माइनस 0.5 इंटू 2 ई की पावर माइनस 0.5 टी। 0.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा -1। तो इक्वेशन बन जाएगी डी ए ओवर डी टी इज़ इक्वल टू -1 ई रेज़ टू पावर माइनस 0.5 टी। अब यही जो डेरिवेटिव वाली इक्वेशन है इसमें से हमने फ़ाइंड क्या करना है, हमने फ़ाइंड करनी है मैक्सिमम यील्ड ऑफ बी या फिर मिनिमम कंसंट्रेशन ऑफ ए, यानी कि रिएक्टेंट की मिनिमम कंसंट्रेशन या प्रोडक्ट की मैक्सिमम कंसंट्रेशन। उसके लिए हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव को ज़ीरो लेंगे, डेरिवेटिव इक्वल टू ज़ीरो जब हम करेंगे इक्वेशन में तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी -1 ई रेज़ टू पावर माइनस 0.5 टी इज़ इक्वल टू ज़ीरो। हम इसको टाइम के लिए फ़ाइंड कर रहे हैं तो सॉल्विंग फॉर टी वी गेट टी इज़ इक्वल टू इन्फिनिटी, क्योंकि हमारे पास टी है लेफ़्ट हैंड साइड पे। जब हम टी को अलहदा करेंगे और सारे बाकी नंबर्स को दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो ज़ीरो के नीचे चले जाएंगे और ज़ीरो ओवर एनीथिंग इज़ इक्वल टू इन्फिनिटी, इसीलिए हमारे पास टी जो है वो इन्फिनिटी आ जाएगा। हाउएवर अगर हमें रियल में कोई वैल्यू फ़ाइंड करनी हो तो हम कोई भी फाइनाइट टाइम लेंगे जिस पे रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो क्लोजेस्ट टू ज़ीरो वैल्यू दे हमें, तो उससे हम रियल में वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हैं। जो डेरिवेटिव के लिए हमने इक्वेशन निकाली है उसको यूज़ करके हम रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो किसी भी रियल टाइम पे फाइंड कर सकते हैं। जो हमारे पास इक्वेशन थी डी ए ओवर डी टी इज़ इक्वल टू -1 ई रेज़ टू पावर माइनस 0.5 टी। इसमें हम टी की जगह कोई भी वैल्यू डाल सकते हैं टी की, और उससे हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन आ जाएगा उस टाइम इंटरवल पर।
लेट्स फाइंड रेट ऑफ रिएक्शन एट t इज़ इक्वल टू 2 आवर्स। अब हम t की जगह उसकी वैल्यू डालेंगे जो हमने खुद से लिया 2 आवर्स, ठीक है, इस इक्वेशन में। तो dA/dt इज़ इक्वल टू -1 e की पावर -0.5 इंटू टी। ई की वैल्यू हमारे पास होती है 2.72 और t हम डालेंगे 2 आवर्स। तो ये दोनों वैल्यूज़ जब हम इसके अंदर डालेंगे तो इक्वेशन बन जाएगी dA/dt इज़ इक्वल टू -1 2.72 रेज़ टू पावर -1, क्योंकि -0.5 इंटू टी था 2 आवर्स, तो 0.5 इंटू 2 बन गया -1, -0.5 था ना, तो -0.5 इंटू 2 हो गया -1 और ई की जगह हमने वैल्यू डाली 2.72, तो -1 इंटू 2.72 रेज़ टू पावर -1, ये हमारी इक्वेशन आ गई। अब इसको सॉल्व करेंगे। 2.72 रेज़ टू पावर -1 जब हमने सॉल्व किया उसका आंसर आया 0.3676। इसको -1 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया -0.3676। ये हमारे पास है dA/dt की वैल्यू। यानी जब हमने 2 आवर्स का टाइम लिया तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो अप्रॉक्सीमेटली क्लोज टू 0 ही आया है हमारे पास, क्योंकि -0.3676 उसका आंसर आया। अब हम कंसनट्रेशन ऑफ ए जो है वो फाइंड कर सकते हैं इस टाइम पर। तो हम जो हमारी दूसरी इक्वेशन थी इंटीग्रेशन वाली, a इज़ इक्वल टू -2 e की पावर -0.5 t, इसके अंदर हम वैल्यूज़ डालेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा कंसनट्रेशन ऑफ ए का इस टाइम पर। और कंसनट्रेशन ऑफ ए इज़ इक्वल टू मैक्सिमम प्रोडक्ट भी हमारे पास वही होगा, a इज़ इक्वल टू 2 ई की पावर, हम ई की वैल्यू डाली 2.72 रेज़ टू पावर -0.5 और t की वैल्यू डाली 2। अब इसको सॉल्व किया, -0.5 इंटू 2 हमारे पास आ गया -1 और 2.72 वैसे ही। अब 2.72 की पावर -1 हमारे पास आंसर आया 0.3676। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 0.7352। ये हमारे पास है कंसनट्रेशन ऑफ ए। बेसिकली हमारे पास मैक्सिमम यील्ड ऑफ बी या मिनिमम कंसनट्रेशन ऑफ ए जो है वो आई है 0.7352 मोल पर लीटर 2 आवर्स जब हमने टाइम लिया। तो मैक्सिमम यील्ड जो है वो 0.7352 है, यानी कि 73.52% जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में चेंज हो चुका है जब हमने 2 आवर्स तक का टाइम लिया। ये वैल्यूज़ जो आई हैं हमारे पास ये स्पेसिफ़िक हैं उन कंडीशंस पे जो हमने ली हैं, और ये वेरी कर सकती हैं रिएक्शंस और कंडीशंस के अकॉर्डिंगली जो भी हम यूज़ करेंगे। सो दिस वाज माय टॉपिक। थैंक यू वेरी मच।